السلام علیکم، میں ہوں نبیلہ سندھو۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، ثبوتوں کو عالمی برادری نے بہت سنجیدہ لیا۔ دنیا اب بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی پر کھل کر بات کر رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا ویب سائٹ کو انٹرویو، کہا بھارت کے پاس دہشت گرد ہیں، افغان سرزمین کو استعمال کر کے سی پیک کو نشانہ بناتا ہے، سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر بھارتی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ خطرات کے خلاف ہم نے مکمل تیاری کر رکھی ہے، ہم یہاں رکیں گے نہیں، عالمی سطح پر اس سنگین معاملے کو مزید آگے لے جائیں گے۔ بھارت کی عالمی سطح پر پوزیشن کمزور ہے، بھارت دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، فالس فلیگ آپریشنز اور ایسے ڈرامے رچاتا ہے۔ The kind of links that you find on social media of some negative press going for Pakistan, 90% of that is coming from Indian websites. The best way to handle this is transparency. ففتھ جنریشن وار کے پیچھے ویب سائٹس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے حالات معمول پر لانا چاہتا ہے، خطے کی صورتحال کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں ہم افغان حکومت کے استعدادی مسائل کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہونے پر افغان حکومت کو زیادہ الزام نہیں دیتے۔ یہ بھی بولے کورونا سے نمٹنے میں پہلے دن سے ہر حکومتی کوشش کا حصہ رہے۔ پہلی لہر میں جو خامیاں اور کوتاہیاں ہماری صحت کے نظام میں سامنے آئیں انہیں ہنگامی بنیادوں میں دور کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ دوسری لہر میں ہم سب کو زیادہ احتیاط کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ او آئی سی کی جانب سے مقبوضہ وادی میں بھارتی یک طرفہ اقدام کو مسترد کرنا خوش آئند ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا او آئی سی کے سفیروں سے خطاب، کہا متفقہ قرارداد میں بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا گیا۔ پاکستان نے اسلامو فوبیا کے بڑھتے رجحانات کے خلاف قرارداد پیش کی جو متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگر وزیر اعلیٰ کے پی عوام کو سہولت نہیں دے سکتے تو عہدہ چھوڑ دیں۔ خیبر پختونخوا میں ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا آپ اپنے ملک میں نالے کھودنے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لیتے ہیں، ملک میں نالے تک خود نہیں کھود سکتے، اپنے ذہن کو صحیح جگہ لے کے آئیں، آپ امریکہ اور ازبکستان سے استعمال شدہ مال لا کر لگائیں گے، یہ قسمت ہے پاکستان کی؟ نالے کھودنے میں کون سی ٹیکنالوجی لگتی ہے؟ ویسٹ مینجمنٹ منصوبہ کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن بولے بی آر ٹی زیادہ اہم ہے یا عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا؟ عدالت نے صوبائی حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی، آئندہ رپورٹ سے مطمئن نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ کو بلانے کا عندیہ دے دیا۔ نیب ملزموں کو ہراساں نہ کرے، قانون کے مطابق چلے، ہر ریفرنس میں 90 روز کا ریمانڈ ظلم ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، کہا نیب اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے، وائٹ کالر کرائم میں تو دستاویزی شواہد دینا ہوتے ہیں، نیب کو قانون کے ماتحت رہ کر ہی فرائض سر انجام دینا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نے کہا کہ فوجداری مقدمات میں 40 روز سے زائد ریمانڈ نہیں مل سکتا۔ کیا تحقیقات کے لیے نیب افسر تربیت یافتہ نہیں؟ نیب تحقیقات مکمل کر کے ایک ہی ریفرنس کیوں داخل نہیں کرتا؟ اسحاق ڈار کے خلاف انکوائری ہوگی، نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں منظوری، سابق وزیر اعلیٰ جی بی مہدی شاہ بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے، انکوائری کی منظوری دے دی گئی۔ سابق ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ سی ڈی اے اور سابق سفیر اے ایس بابر ہاشمی کے خلاف ریفرنسز دائر ہوں گے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نیب کراچی کے دوسرے نوٹس کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ نیب کے مطابق 1 دسمبر کو حفیظ شیخ کو طلب کیا تھا، نوٹس کے باوجود وہ پیش نہیں ہوئے۔ حفیظ شیخ پر سابقہ ادوار میں قومی خزانے سے غیر قانونی ادائیگی کا الزام ہے، $1 کروڑ 12 لاکھ کی بدعنوانی کا الزام میں تحقیقات ہو رہی ہے۔
कोरोना के वार न रुके, एक दिन में वबा से 39 अमवात, 3,499 नए केसेस। मुल्क में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 8% से बढ़ गई। कराची में मस्बत केसेस का तनासुब सबसे ज्यादा। कराची के जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची की मुतासरा गलियां सील रहेंगी। वजारत हाउसिंग में 2 जबकि फूड सिक्योरिटी में 15 केसेस सामने आ गए। पाक सेक्रेटेरिएट के बी ब्लॉक को सील कर दिया गया। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, कल मुल्क भर में यौम दुआ मनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की उलमा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सियासतदानों से जलसे जुलूस कुछ अरसे के लिए मौखर करने की अपील। उलमा कराम का हर इज्तिमा में अवाम को आगाही देते रहने का इरादा। मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी। नमाज जुमा के इज्तिमात में कोरोना की दूसरी लहर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी। सदर मुमलिकत ने कहा, कोशिश करें वुजू घर से करके आए, जाए नमाज साथ लाएं। 55 साल से जायद उम्र अफराद घर में ही नमाज अदा करें तो उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। मुल्क भर में इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, यहाँ पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है, अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करा रहा, सियासत में मशगूल हैं तो हम क्यों मदाखलत करें। सोसाइटी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। दरख्वास्त गुजार पार्लियामेंट पर एतमाद करे, वहीं उसका हल निकल सकता है। इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। वफाकी हुकूमत का जज़ायर पर सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करने का फैसला। टास्क गवर्नर सिंध को सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म से इमरान इस्माइल की मुलाकात। इमरान खान की एतमाद साजी का फुक़दान ख़त्म करने की हिदायत। MQM के वुज़रा कराची के अवाम के साथ हैं तो इस्तीफे दें। सिंध हुकूमत का मशवरा। सईद गनी कहते हैं, लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। स्टील मिल्स मुलाजिमीन के साथ खड़े हैं। अगर स्टील मिल ये किसी प्यारे को देंगे तो सूबा सिंध के पास हक है कि उस पर कब्जा करे। कानून के मुताबिक स्टील मिल्स की जमीन सूबा सिंध की मलकियत है। पाकिस्तान स्टील पर बहुत से लोगों और माफियाज की नजरें हैं। पेरोल की मुद्दत खत्म। शहबाज शरीफ और हमजा फिर से जेल मुंतकिल। कोर्ट लखपत जेल में मौजूद। मुंतकिली से कबल स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। मरियम नवाज और हमजा भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात की सेहतयाबी की दुआ। कई लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। नून लीग ने लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। शाहिद खखान अब्बासी कहते हैं, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन खुला है। हुकूमत की बौखलाहट साबित कर रही है कि लाहौर जलसा कामयाब होगा। ख्वाजा साद रफीक बोले, हुकूमत ने सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं किया। PTM भरपूर तैयारी कर रही है। कोरोना में इज्तिमात अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। PDM की हठधर्मी ने अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, सियासी तमाशा लगाने वाले बहुत जल्द खुद तमाशा बनने वाले हैं। मुल्तान की जलसी के बाद जाती उमरा की राजकुमारी और कनीजों की नींदें हराम हो चुकी हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, एहतसाब के खौफ से नून लीगी कायदीन अब हुकूमत को धमकियां देने पर उतर आए हैं। इन्हें NRO नहीं मिलेगा। हुकूमती कैंपों से लफ्जी वार न रुके। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, PDM के जत्थे की मईशत खतरे में है। करप्ट लुटेरे बेनकाब हो चुके। इमरान खान ने बादशाहत का खात्मा कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, ऑपोजिशन के जलसे फ्लॉप हो चुके। PDM के लाहौर के जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी चाहिए। शेख रशीद का भी ऑपोजिशन को जवाब, कहते हैं वफा करोगे तो वफा करेंगे। सियासत में बातचीत के दरवाजे कैसे बंद कर सकते हैं।
वज़ीर आज़म का खुसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपए वजीफा देने का ऐलान। कहा मखसूस अफराद के लिए नई एहसास किफालत पॉलिसी से 20 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावी अर्बन अथॉरिटी के हवाले से इजलास की भी सदारत की। इमरान खान ने कहा कि दोनों मंसूबे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अवाम के इल्म में लाया जाए कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए माशी और माहौलियाती मसाइल का हल मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग का भी इजलास। इमरान खान ने कहा कि मुल्क के लिए इंतहाई जरूरी है कि मईशत का पहिया चलता रहे। इस्लामाबाद में ग्रीन एरियाज को बचाने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। बरतानवी शहजादे चार्ल्स का वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता। प्रिंस चार्ल्स का कोरोना के दौरान मदद फराहम करते रहने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का मौसमियाती तब्दीली के खतरे से निमटने के लिए पाकिस्तानी अज़्म का भी खैर मकदम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की 2 खाली नशिस्तों पर तैनातियों के लिए 2 नामों की सिफारिश। सीनियर वकील तारिक जहांगीरी और बाबर सत्तार के नाम तजवीज़। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भेज दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा रुझान जमाली मिल ग्राउंड में अदा की गई। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। दौरा न्यूजीलैंड पर खतरे के बादल मंडलाने लगे। पाकिस्तानी स्क्वाड के मजीद 2 मेंबर्स के कोरोना पॉजिटिव निकल आए। मुतासरा अरकान की तादाद 10 हो गई। न्यूजीलैंड ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान पहला 4 रोजा मैच भी मनसूख। कप्तान बाबर आजम कहते हैं न्यूजीलैंड में हालात इंग्लैंड से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। हर कोई एक दूसरे का ख्याल रख रहा है। ग्राउंड प्रैक्टिस की कमी शिद्दत से महसूस होती है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, सबूतों को दुनिया ने बहुत संजीदा लिया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, सबूतों को दुनिया ने बहुत संजीदा लिया। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि दुनिया अब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर खुलकर बात कर रही है। हम खबर दे रहे हैं आपको। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि भारत के पास दहशतगर्द हैं, अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके सी पैक को निशाना बनाता है। सी पैक को नुकसान पहुंचाने की हर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। हम यहां रुकेंगे नहीं, आलमी सतह पर इस संगीन मामले को मजीद आगे ले जाएंगे। This dossier came out. This was frankly a vindication of what Pakistan had been saying for so long. It gave all the proofs, evidence of Indian government, India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. तर्जुमान पाक फौज ने भारत के मज़मूम मकासद के खिलाफ हर फोरम को इस्तेमाल करने का अज़्म ज़ाहिर किया। After the presentation of the dossier, the Foreign Office presented it to the P5. It has been presented to the United Nations Secretary General. And then now you've seen the latest statement from the OIC Forum. Here on, we are going to take it to every possible forum. तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू में भारत की सी पैक के खिलाफ साजिशें खोलकर रख दी। Since this particular zone is also being used to target the CPEC, Indians see CPEC as a game changer for the region, and that's what the project's name also says, China-Pakistan Economic Corridor. So the kind of threat that it is facing from the Indians is obviously they've started with the security threats that we are facing. The terrorists who are being used to target this project are continuously targeting the Chinese
manpower involved. They try to do that. They are trying to target the labor, the local labor also who are working. DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत के कैपेसिटी इश्यूज तस्लीम करता है. We've never really blamed the Afghan government for what's happening from the Afghan soil. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाई जा रही है जो आइंदा बरस तक मुकम्मल हो जाएगी. इसी खबर से मुतल्लिक एक और अहम खबर, भारत दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाने के लिए सीज फायर की खिलाफ वर्जियां करता है. तर्जुमान पाक फौज का ये एक वेबसाइट को इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तवज्जो कश्मीर से हटाने के लिए सीज फायर की खिलाफ वर्जियां करता है. 5th जनरेशन वॉर के पीछे वेबसाइट्स के ताने बाने भारत से मिलते हैं. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और ऐसे ड्रामे रचाता है. In the second wave. The kind of links that you find on social media of some negative press going for Pakistan, 90% of that is coming from Indian websites. The best way to handle this is transparency. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत का जंगी जुनून भी दुनिया के सामने रखा. India is aiming at equipping herself with high-tech material. As far as we are concerned, I think the differential of defense spending between India and Pakistan is almost 1-9. The international community has to understand that any major disturbance in the balance of power in South Asia will be a major disaster for not only for the region but also for the rest of the world. मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में खुद मुख्तार जिद्दोजहद आज़ादी है जो 70 साल से जारी है. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कोरोना पर काबू पाने में पाक फौज के किरदार का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि कोरोना वबा से निपटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा है. दूसरी लहर में हमारी तैयारी पहली लहर से बेहतर और खासी मुयस्सर रही. हम बेहतर तौर पर मुकाबला कर रहे हैं. इस लहर में सबको ज्यादा एहतियात और एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है. सकते तो ओहदा छोड़ दें. खैबर पख्तूनख्वा में वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स. अहम खबर दे रहे हैं आपको. अगर वज़ीर आला केपी अवाम को सहूलत नहीं दे सकते तो ओहदा छोड़ दें. आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आप अपने मुल्क में नाले खोदने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लेते हैं. मुल्क में नाले तक खुद नहीं खोद सकते. अपने जहन को सही जगह लेके आए. चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आप अमरीका उज्बेकिस्तान से इस्तेमाल शुदा माल लाकर लगाएंगे. ये किस्मत है पाकिस्तान की. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नैब मुल्ज़िमों को हरासा मत करे, कानून के मुताबिक ही चले. हर रेफरेंस में 90 रोज का रिमांड तो जुल्म है. सुप्रीम कोर्ट में नैब मुल्ज़िमों के खिलाफ एक से ज़ायद रेफरेंसेस दायर करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई. जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हर रेफरेंस में 90 रोज का रिमांड तो जुल्म है. वाइट कॉलर क्राइम में तो दस्तावेजी शवाहिद देना होते हैं. जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि फौजदारी मुकदमात में 40 रोज से ज़्यादा रिमांड नहीं मिल सकता. क्या तहकीकात के लिए नैब अफसर तरबियत याफ्ता नहीं? नैब तहकीकात मुकम्मल करके एक ही रेफरेंस क्यों दाखिल नहीं करता? नैब के लॉ अफसरान इशूज पर डिपार्टमेंट में बात क्यों नहीं करते? नैब के पास ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इख्तियार किस कानून में है? एक और अहम खबर, चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास. साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी गई. चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और इस इजलास में इसहाक डार और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी गई. इजलास के अंदर साबिक डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट CDA असदुल्ला फैज और साबिक सफीर AS की भी इंक्वायरियों की हिदायत. चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और इस इजलास में साबिक वज़ीर खजाना और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी गई.
अहम खबर दे रहे हैं आपको। मुशीर खजाना हफीज शेख नैब कराची के दूसरे नोटिस के बावजूद पेश न हुए। नैब ने 1 दिसंबर को हफीज शेख को तलब किया था। मुशीर खजाना हफीज शेख नैब कराची के दूसरे नोटिस के बावजूद भी पेश न हुए। नैब ने 1 दिसंबर को हफीज शेख को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। आपको अपडेट करें कि हफीज शेख पर साबका अदवार में कौमी खजाने से गैर कानूनी अदायगी का इल्जाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।